अगर आप बहुत कंटिन्यूअसली फास्ट बोलोगे, जैसे today's our topic is how to speak confidently, so friends, these are some points, these are barriers I'm going to explain, तो पॉइंट इज सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा. पीपल वुड बी ब्लैंक कि क्या बोल रही है ये. और इफ मैं बहुत लंबे पॉजेस लू कि गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम गोइंग टू, ऐसे बहुत बड़े पॉजेस ले रहे तो पीपल वुड बी कितना स्लो बोल रही है, तो ऑफ टॉपिक जाएगा, बहुत बोरिंग होगा. इसलिए पेस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Even in different programs, public speaking, debates, group discussion, pace is very important. If you are in a debate, तो तब आप स्लो अपने पॉइंट्स नहीं बोलोगे, धीरे धीरे नहीं बोलोगे. ये पॉइंट्स शुड बी प्रिसाइज, और आपको जितने जल्दी हो सके हाईलाइट करके मेन पॉइंट्स बताने होते हैं सामने, क्योंकि देयर इज अ टाइम लिमिट. तो तब आपको टाइम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है, आपको कब क्या कितना बताना है. सो फोर्थ वन इज वॉल्यूम. अगेन दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम आपके आवाज में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू अडेप्ट. अगर आपको कोई चीज, जैसे किसी को शांत कराना है, तो आपको अपनी थोड़ी पिच बढ़ानी पड़ेगी. जिस सिचुएशन में बोल रहे हो उस हिसाब से आपका वॉल्यूम आपको एडजस्ट करना है. कोई आप दुखी बात बोल रहे हो तो थोड़ा धीमे वॉइस में बोलोगे. कोई आपको इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट करना है, सो यू वुड से दैट वर्ड अ लिटिल बिट लाउडर. सो उस हिसाब से यू हैव टू अडेप्ट. Another one, body language. Again, it is very important. Again, if I am like this and I am telling you, body language is very important. You have to maintain a proper body language. तो you would say पहले खुद का body language तो सुधार लो, उसके बाद हमको सिखाना. So basically, even if I am giving you presentation, so my body language would be I need to stand straight, use proper hand gestures. Similarly, आप बैठे हो तो you just cannot shake your foot, you just cannot sit like this. You have to keep your hands here. हर एक जगह, even if you are sitting, there is a body posture you have to maintain. Body posture हर जगह maintain. It's not like if you are only speaking then you only have to maintain the body posture. हर एक चीज में it is important. Even if you are listening, you have to maintain a proper posture. If you are giving public speeches, doing something, whatever you are doing, body posture plays a very important role, as 55% of the communication takes place with the help of body language only, and the rest 45% is what we communicate through talking. So confidence boost करने के लिए body language is a must. That's most important. Last one is eye contact. Again, eye contact is very important. If I am telling you something and I am looking at the walls, so whoa, what a beautiful walls, what would you say? दीवारों से बातें करी क्या? यू आर टेलिंग अस ना, सो लुक एट अस. तो इफ यू आर स्पीकिंग टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, लुक एट हिम और हर. इफ यू आर स्पीकिंग टू पीपल, अ ग्रुप ऑफ ऑडियंस, सो यू हैव टू लुक एट everyone in the eye. So these were some key elements you have to consider if you are talking with someone, and it shows confidence in yourself. So any queries? Shall we move forward? Okay, so let's get to this part, barriers. अब हमने ये तो पता कर लिया कि how to speak confidently, किस बातों का हमें ख्याल रखना होता है, what things we have to consider. But again, barriers, कुछ problems है that people face while speaking. For example, in speech they gave, there are some barriers in public speaking events, whatever you notice. So these are the barriers. First one is fear of judgment. चार लोग क्या कहेंगे, तो सबने सुना ही होगा, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सो कीपिंग इन दैट माइंड, यू हैव टू फॉरगेट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू. अब मैं ये नहीं सोचूंगी कि पीछे बैठ रही ऑडियंस क्या सोच रही, जो मेरे पे फोकस नहीं कर रहे. मैं वो नहीं सोचूंगी कि दे आर डूइंग सम एक्टिविटीज. आई वुडंट जस्ट फोकस ऑन देम. इंस्टेड आई वुड फोकस ऑन अदर ऑडियंस. आपको ये नहीं देखना है कि कोई आपको मॉक कर रहा है कि ये तो नहीं कर सकते, आपका मजाक उड़ा रहे कोई भी, तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट. लोग कहेंगे, let them speak whatever they want, just focus on what you have to say and what you have to present. Second is lack of preparation. Again, if you are giving a speech on a topic, let's take my example.
अब मैं पीपीटी आपको बता रही हूँ, अब मुझे टॉपिक का नॉलेज ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊंगी. सो फॉर दैट you have to prepare your topic very well. If you are giving speech, for example, importance of yoga, so what you would consider? Can anyone of you tell me कि अगर हमें बताना है importance of yoga, हमें speech देनी है तो क्या क्या elements हमें उसमें बताने पड़ेंगे? टेक योर टाइम. योगा से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें बतानी पड़ेंगी हमारी स्पीच में? प्राणायाम, आसन. एग्जैक्टली. इम्पोर्टेंस. डेफिनेशन बताओगे पहले आप, व्हाट इज योगा, योगा एक्चुअल में क्या होता है, मीनिंग. अगेन फिर उसके बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ योगास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम्स एंड ऑल, ये सब बताओगे. एंड ऑल्सो व्हाट टिप्स यू वुड अवॉइड. सो इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव टू रिसर्च ऑन द टॉपिक. That's why it is very important that some people present the information, give speech randomly without preparing for the topic. So the lack of preparation is a barrier that hinders your confidence. Third one is nervous body language. Again, if my hands are shaking, I'm telling you speak confidently, but my hands are shaking, so what would you say? She isn't confident about herself, तो वो हमको क्या present करेगी? So be confident. जो nervous body language है, you have to avoid. You have to avoid some gestures, overreacting. या आपको सब avoid करना है and present खुद को confidently करना है. Fourth one is negative self talk. I cannot do this. It is impossible. I can't. ये negative self talk हो गया, खुद को कम आंकना. Instead, इसके जगह आप अपनी vocabulary को replace करो. I can, I will. Even impossible says I am possible. So you have to talk positively with yourself only. मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ. I can do it. Last, perfectionism. No one is perfect. सबके पास अपनी अपनी स्किल्स है. अब सब बोलेंगे that इसके पास तो कॉन्फिडेंस है बट हमारे पास नहीं है, तो कैसे अडेप्ट कर रहे? तो परफेक्ट कोई नहीं है, सब कोई सीख के नहीं आता है. मैंने भी कोई प्रैक्टिस की होंगी, उसके बाद ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है. तो सिमिलरली यू हैव टू प्रैक्टिस. नो वन इज परफेक्ट. कीप प्रैक्टिसिंग एंड देन यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली एंड डूइंग एनी एक्टिविटीज. कोई भी एक्टिविटीज, स्पीकिंग के बारे में भी छोड़ के कोई अदर एक्टिविटीज भी हमने कंसिडर की. फॉर एग्जाम्पल रॉक क्लाइंबिंग, म्यूजिक, डांसिंग. तो एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस. ओके, so these were the barriers. And anyone having any doubts? Shall we move forward? Yes. तो ये तो थे barriers कि क्या barriers आते हैं to present yourself or speak confidently. Now we'll move towards the tips. इन barriers को remove करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं. So first one is know your material. Again, know about the topic you are talking about. एंड जब आप प्रेजेंट कर रहे हो अपना टॉपिक, सो यू हैव टू बी प्रिसाइज. योर इंफॉर्मेशन शुड रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक. जो आप टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल योगा. अब आप योगा बोल रहे हो तो आप उसमें कोई दूसरी एक्सरसाइज का, जैसे जिम का इंपॉर्टेंस तो नहीं बताओगे, बताओगे कि योगा पोस्चर्स के बारे में बताओगे. सो योर इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक. अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, तो अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगी कि कैसे आप योगा सीखो, कैसे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना. मतलब अब मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, तो आई विल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दैट टॉपिक ओनली. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन की तरफ यू टेक अ स्टेप. एक प्रैक्टिस, दो प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना यू विल गेट बेटर. स्टार्ट स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. एक फर्स्ट इंप्रेशन आपका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है किसी भी पर्सन पे. उसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बन गया तो एट द एंड थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हुई तो द पर्सन विल बी लाइक, इसने स्टार्ट अच्छा किया था, ही इज और शी इज अ गुड कैंडिडेट. बट आपका स्टार्ट ही थोड़ा खराब हो गया तो फिर इंप्रेशन ही वो बन जाता है दैट ही और शी इज नॉट कैपेबल. इवन यू कैन सी, आप इंटरव्यूज दोगे, कोई
जो प्रिपरेशन करोगे जॉब इंटरव्यूज कोई भी, तो वहाँ फर्स्ट इंप्रेशन आपका, जब आप व्हेन यू वॉक इनसाइड, तो वो आपका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, कॉन्फिडेंस देखते कि कॉन्फिडेंस कैसा है, तो वही से दे स्टार्ट जजिंग यू जैसे ही आप एक स्टेप रखते हो अंदर. सो स्टार्ट, अ गुड स्टार्ट इज अ मस्ट. एंड इफ यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच, समथिंग स्पीकिंग अबाउट, तो एक गुड स्टार्ट होनी चाहिए. Use pauses. Again, pauses are very important. If you are speaking without taking proper pauses, then again कोई सुनता नहीं आपकी बात को, वो मोनोटोनस हो जाएगा. So take proper pauses. I don't think इतना explain करने की जरूरत है. We'll move to the next one. Engage your audience. Again, engaging is important. For example, I am giving you presentation. If मुझे आपको engage करना है, तो I will ask you questions. We will interact. You will give me the answers. You would ask me some questions. I will tell you story. So engage करने के लिए कुछ tips है audience को. If you are presenting something, for example, you can provide them some facts. जैसे I provided you one. You can tell them a story, interesting story. It captivates their attention and सब audience आपके तरफ ध्यान से सुनती है. So it is helpful for public speaking, presentations and other activities. उसके बाद हम बाद में करेंगे. Stay calm. Don't get nervous. Stay calm and cool. सबको MS धोनी तो पता ही होगा, कैप्टन कूल. उसका नाम है, उनका सर का नाम है कैप्टन कूल है. सो वाई, कोई बोल सकता है लाइक क्यों उनको कैप्टन कूल बोलते हैं? लड़के तो क्रिकेट देखते होंगे. MS धोनी को देखे होंगे ना, मैचेस तो देखे होंगे ना, क्रिकेट देखते ना यहाँ सब. एक्चुअली उनका जो नेचर है काम एंड कंपोज, कोई भी सिचुएशन है, इवन इंडिया इज गोइंग टू लूज द मैच, स्टिल ही इज वेरी काम. एंड इस कामनेस की वजह से उन्होंने हारते हुए मैचेस को भी जिताया हुआ है. सो यहाँ से आपको सीखने की जरूरत है दैट कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टे काम, कंपोज, कूल, डोंट गेट नर्वस. लास्ट वन इज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. अगेन एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए. गलत जेस्चर्स यूज नहीं करना है. फॉर एग्जांपल पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स समथिंग, यूजिंग सम रॉन्ग इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स, टैपिंग योर फुट लाइक दिस, नॉट सिटिंग प्रॉपर्ली, लाइक ऐसे झुका के रहना. सो यू हैव टू अवॉइड ऑल द बैड पोस्चर्स. सो दीज वर द टिप्स. और एनीवन वुड लाइक टू गिव एन एक्स्ट्रा टिप कि और क्या टिप्स हो सकती है हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, जैसे बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, और क्या टिप्स हो सकती है? कैन एनीवन प्रोवाइड मी विद वन? कोई भी, रिपीट भी हुई तो इट्स फाइन, मन से कोई भी. कॉन्फिडेंस से बोलना है तो क्या टिप्स वी कैन कंसिडर? जैसे लुक इनटू द आईज, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, और कोई बता सकता है? Gestures, very good. Gestures also there. So I don't think there's any problem with this. I would like to share my experience. एक प्रोग्राम था. सो हमारे टीचर्स थे, हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम था. सो ऑन स्पॉट हम ऑडियंस में बैठे थे, तो मैम ने मेरे बाजू में एक स्टूडेंट थी, उसको कहा था यू हैव टू गिव अ स्पीच. उसको टाइम पे 5 मिनट पहले बताया, तो शी गॉट पैनिक्ड. मैं कैसे दूंगी. शी गॉट वेरी पैनिक. तो स्टेज पे नाम अनाउंस हुआ उसका, XYZ, यू हैव टू गिव अ स्पीच. शी गॉट पैनिक्ड. वो वहां से उठी ही नहीं. होल ऑडियंस वाज लुकिंग इनटू हर कि ये उठ नहीं रही है. तो फिर भी वो नहीं उठी कि शी वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं स्पीच कैसे दूंगी टाइम पर. देन दे अनाउंस्ड माय नेम. मैं बाजू में बैठी थी. They said, instead निधि शुक्ला will give a speech. I was like, ठीक है. वहां पे you have to use your brain. अब मुझे जिस टॉपिक के बारे में स्पीच देनी थी, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, अब मुझे उसके बारे में XYZ कुछ नहीं पता ये है कौन. What I did, I said okay. मैं उठ गई. मैंने जाते जाते मोबाइल पे सर्च कर लिया, प्रॉम्प्ट आ गया. So I went to the stage, ऐसे डायर्स पे, I kept my mobile. I was confident. Okay, I can do it. I went there. थोड़ा मैंने देख लिया. I got the idea. देखते गई, बोलते गई ऑडियंस की तरफ देखते हुए. एंड लास्ट में क्या हुआ? टीचर अप्रिशिएटेड मी. लाइक तुम्हें टाइम पे बुलाया एंड स्टिल यू गेव द स्पीच. सो इट्स नॉट लाइक यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट. इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस.
दैट आप में कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी कर सकते हो. अब मुझ में कॉन्फिडेंस था तो मैंने तो देख कर बताया, बट डजेंट मैटर. व्हाट आई डिड इज आई यूज्ड क्विक, वहां पे आई यूज्ड माय ब्रेन. मैंने वहां गई एंड स्पीच दी. एंड कुछ कॉमन सेंटेंसेस जो हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं, आई यूज दैट. एंड उसके वजह से टीचर के नजरों में मेरी इज्जत थोड़ी अच्छी हो गई. एंड वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा she kind of scolded her कि why didn't you come when I was they were asking about you on the stage. So इस एक्सपीरियंस से आपको ये सीखना है कि you have to be confident. कॉन्फिडेंस में रहो, कोई भी चीज आप, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन सॉल्व इट. अब खुद का एक्सपीरियंस तो हो गया. आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी, एक फनी, नॉट फनी, a good story about the confident parrot. So ये एक राजू नाम का लड़का रहता है, उसको एक टॉकिंग पैरेट चाहिए था, तो वो गया पेट शॉप में. अब पेट शॉप में उसको दिखे फिश, कैट, डॉग, बट उसको पैरेट चाहिए था. उस पर उसकी नजर गई, तो ही आस्क्ड द शॉपकीपर, आई वुड लाइक टू परचेस दिस पैरेट. सो द शॉपकीपर सेड, दिस पैरेट कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फ्रेंच एंड मैंडरीज, यानी जो चाइना में बोली जाती है, चाइनीज ऑल्सो. तो ही सेड, वाओ, मैं तो यही पैरेट खरीदूंगा. बट देयर इज वन कंडीशन, द शॉपकीपर सेड दैट द पैरेट ओनली स्पीक्स इफ ही इज कॉन्फिडेंट. उसके पास कॉन्फिडेंस होगा तभी वो बात करेगा, नहीं तो उसकी 5 लैंग्वेजेस का कोई यूज नहीं. ही सेड ओके, ही बॉट इट, घर पे लाया उसको. नेक्स्ट डे वो उस पैरेट के पीछे, he was like, अब मुझे इससे वो लैंग्वेजेस सीखनी है. सो ही स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट थिंग्स. उसने, पैरेट ने कुछ नहीं बोला, तो ही प्लेड म्यूजिक, कि म्यूजिक से चीयर अप होगा इसका मूड, फिर बोलेगा. फिर भी नहीं बोला वो. फिर उसने उसको कुछ अच्छा खाने की चीजें दी. अब पैरेट्स को वो मिर्ची पसंद है, और क्या खाते पैरेट्स, किसी के पास होगा, मिर्ची खाते और रोटी टाइप, हाँ टमाटर. ही गेव दैट एज वेल. तो फिर भी वो खा लिया उसने, पैरेट ने अच्छे से, एक शब्द भी नहीं बोला. फिर ही प्लेड द म्यूजिक, ही स्टार्टेड डांसिंग, कि अब इसका मूड चेयर होगा. फिर भी कुछ नहीं बोला. 2-3 दिन ऐसे ही चला. ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड. ही सेड, व्हाट अ यूजलेस पैरेट, वेस्टेड माय मनी. उसने इतना महंगा पैरेट खरीदा एंड कोई यूज ही नहीं आ रहा. पैरेट के भी ईगो पर आ गई. पैरेट स्टूड स्ट्रेट, कॉलर ठीक किया, और लाउडली ही सेड, how can you expect me to speak if you didn't teach me anything? Like, confidence comes from preparation. You didn't teach me anything and you expect me to speak. So he was astonished. Raju was astonished. So next day से उसने क्या किया, बुक लिया, और उसके साथ ही, पैरेट के साथ ही started preparing. डिक्शनरी उसके साथ ही पढ़ता था. अब उससे क्या हुआ, आफ्टर सम डेज the parrot started giving more speeches than Raju. राजू को भी अच्छे से स्पीच देते आता था, बट विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस, वो पैरेट में इतना पढ़ने की वजह से, प्रिपरेशन की वजह से कॉन्फिडेंस आ गया कि वो राजू से अच्छी स्पीचेस देने लग गया. तो लोग राजू को घर पे आते थे, तो वो राजू नहीं, उसके पैरेट से मिलने आते थे. सो व्हाट्स द मॉरल इज, कॉन्फिडेंस इज नॉट मैजिक, इट्स अ प्रिसाइज प्रैक्टिस इन डिस्गाइज. दैट मीन्स आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो वो कोई मैजिक तो है नहीं, अपने आप एक दिन में आ जाएगा. आज आपने प्रेजेंटेशन सुना, कल आप में कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं. यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट. सो क्या करना, कभी पब्लिक स्पीचेस हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो आगे खुद से बढ़ के पार्टिसिपेट करना. सो इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो दैट वाज अ स्टोरी अबाउट कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. सो अब प्रैक्टिस तो करनी है. आई वॉन्ट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब तो हमने देख लिया. Now, there are 2 activities that you can practice to boost up your confidence. First is 1-minute talk challenge. घर पे जाओ, you can do anywhere. 1 मिनट का टाइमर लगा दो, कोई भी टॉपिक लो and start speaking on it, जो आपके दिल में आता है. And do this practice again and again. आपके बोलने, आपके जो पॉजेस है बरोबर लेना, उसमें हर चीज कंसिडर करो. अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से you will get that habit, और improve हो गया आपका talking. And second is voice projection exercises. There are certain voice projection exercises like
pronunciation drills, using some advanced words in your vocabulary. ऐसे different exercise है, humming exercise that you can do to improve your speaking ability, improve your confidence in speaking. So all these you have to practice. And any queries? So thank you. This was all the presentation about how to speak confidently. What we saw: barriers, tips to overcome that barriers, how to speak confidently. I told you my personal experience story, and these activities you can practice. So thank you so much for this.